Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 5. Linear Inequalities and Linear Programming. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Problem constraints. In everyday life, each linear inequality concerning the problem is named as problem constraint. Each linear inequality concerning the problem is named as problem constraint. Number 1. The system of linear inequalities involved in a problem are called problem constraints. The system of linear inequalities involved in a problem are called problem constraints. The variables in the system of linear inequalities of everyday life are called non-negative constraints. The variables in the system of linear inequalities of everyday life are called non-negative constraints. The variables are also called decision variables. Feasible solution set. If the non-negative constraints x greater equal to 0 and y greater equal to 0 are included in the system of the inequalities. If the non-negative constraints x greater equal to 0 and y greater equal to 0 are included in the system of linear inequalities, then the solution of region is restricted to the first quadrant. भाई हमारा जो solution होगा first quadrant में होगा. Such a region is called feasible region. Such a region is called feasible region for the set of given constraints. Number 1. Each point of the feasible region is called the feasible solution. Each point of the feasible region is called the feasible solution of the system. A set of all feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set. A set of all feasible solutions of the system of linear inequalities is called a feasible solution set. उसको भाई क्या बोलेंगे? feasible solution set. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Question 1. Graph the feasible region of the following system of linear inequalities and find the corner points in each case. Number 1. 2x minus 3y is less than equal to 6. 2x plus 3y is less than equal to 12. Or x is greater equal to 0, y is greater equal to 0. Associated equations are 2x minus 3y is equal to 6. 2x plus 3y is equal to 12. इसको 1 2 कह दें. नाउ आप जरा देखें, ये हमारी L1 है जी. इसका x इंटरसेप्ट 3 0 और y इंटरसेप्ट 0 और -2 जी. भाई इसका x इंटरसेप्ट क्या है? 3 0 और y इंटरसेप्ट क्या है? 0 -2 जी. भाई L1 का x इंटरसेप्ट क्या है? 3 0 और y इंटरसेप्ट क्या है? 0 -2. x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0. जब इसमें y 0 पुट करोगे फर्स्ट में तो भाई जन वहां से x की वैल्यू 3 निकलेगी तो पेयर बनेगा 3 0. y इंटरसेप्ट निकालना हमेशा तो पुट x इज इक्वल टू 0. इसमें जब x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू -2 निकलेगी तो पेयर बनेगा 0 -2. ये हमारी L1 निकल आएगी. नाउ ये ट्रू है, वजन क्या है? ट्रू है, तो इसका पोर्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन. नो L2 का x इंटरसेप्ट क्या है? 6 0 और y इंटरसेप्ट का 0 4. भाई x इंटरसेप्ट का 6 0 और y इंटरसेप्ट का 0 4. x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0. जब y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6 निकलेगी तो पेयर बनेगा 6 0. y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0. जब x 0 पुट करोगे y की वैल्यू 4 निकलेगी तो पेयर बनेगा 0 4. सो वी हैव आप जरा देखें, ये हमारे पास L1 है,
इसका एक्स इंटरसेप्ट 3 0 और वाई इंटरसेप्ट 0 2 0 माइनस 2। इसका एक्स इंटरसेप्ट का 6 0 और वाई इंटरसेप्ट का 0 4 2। तो आप जरा देखें L1 हमारी ट्रू है भैया, L1 हमारी ट्रू है तो क्या होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये वाला सारा पोर्शन होगा जी। और L2 ट्रू है तो ये वाला पोर्शन होगा जी। नाउ वी आर गिवन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो भाई आप जरा देखें एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब है इस तरफ और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब, तो भाई ये हमारा जो शेडेड पोर्शन होगा ना, ये हमारा वो सोल्यूशन होगा जी। आप कॉर्नर पॉइंट्स जरा देखिएगा गौर से। नौ एक 0 0 है, एक 3 0 है, एक 0 4 है, और ये किस तरह निकलेगा। आप L1 और L2 को अलहदा हल कर लें, एक्स वाई को भाई इनको हल करें, एडिंग करेंगे एक्स निकल आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे वाई निकल आएगा, यानी कि ये 9/2 और 1 निकलेगा। लेकिन अगर आप इसका जो जेन्युइन मेथड ये है कि अगर हम ये फिगर ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो हम मेजर करेंगे एक्स कितने यूनिट बनता है, इतने, वो 4.5 बनेगा, और वाई कितने यूनिट बनता है 1 बनता है, तो ये हमारा 9/2, दैट इज जेन्युइन मेथड। तो 9/2 और 1 हमारा कैरी, ये कॉर्नर पॉइंट, 4 कॉर्नर पॉइंट निकले, 1 2 3 4। Now we have x plus y is less than equal to 5 minus 2x plus y is less than equal to, where x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0. Associated equations are x plus y is equal to 5, 1/2x plus y is equal to 0. Now आप जरा देखें x इंटरसेप्ट, ये हमारी L1 है जी L1 भाई x इंटरसेप्ट 5 0 और y इंटरसेप्ट 0 5। भाई x इंटरसेप्ट का 5 0 और y इंटरसेप्ट 0 5। x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, भाई 1 के अंदर y 0, y को 0 पुट कर x की वैल्यू 5 निकलेगी तो पेयर बनेगा 5 0। y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x 0, x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y की वैल्यू 5 निकलेगी तो 0 5 बनेगा। ये हमारी L1 है। और भाई जन ये x प्लस वाई इज लेस देन, ये 2 है तो इसका मतलब टूवर्ड्स दी ओरिजिन, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। नो वी हैव सेकंड 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे -1 0, वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे 0 2। भाई एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे -1 0 और वाई इंटरसेप्ट निकलेगा 0 2। और भाई जन ये ट्रू है तो किस तरफ होगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन। सो वी हैव देखें ये हमारी L1 है, ये ट्रू है, तो भैया ऑन वी हैव ऑन दिस पोर्शन दिस साइड, और भाई ये L2 है, वी हैव दिस पोर्शन। नो x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर, x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब वी आर ऑन दिस साइड एंड y ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑन दिस साइड। तो भाई ये वाला जो पोर्शन होगा ये हमारा शेडेड पोर्शन होगा जी। भाई जन ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होगा, शेडेड पोर्शन होगा। नाउ अगली बात, जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे 0 0 5 0 0 2 एंड 1 4। भाई 1 4 का ओरिजिनल मेथड है कि भैया हम इधर इतने यूनिट आए, ये 1 यूनिट इधर आएगा और 4 यूनिट इधर होगा जी। लेकिन इशू ये है कि ये अगर निकालना मुश्किल हो तो इन दोनों को साइमल्टेनियस हल करना, वो किस तरह, भाई एक दफा सब्ट्रैक्ट करोगे x निकल आएगा, ठीक है जी, x की वैल्यू यहाँ पर आपको y निकल आएगी, तो टेंशन लेने वाली बात को नहीं। 1 4 हमारा कॉर्नर पॉइंट्स, भाई ये जो नुकरे बनती है ना ये फिगर की, ये जो शेडेड पोर्शन जिसके अंदर आता है, ठीक है जी, वो जो कॉर्नर है उसको कॉर्नर पॉइंट्स बोलते हैं। तो वी हैव 4 कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 5 0 1 4 एंड 0 2। तो भाई जब एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो तो हमेशा पुट y 0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट x इज इक्वल टू 0। हमेशा x इंटरसेप्ट में कर्व कहाँ पे x एक्सिस कट करती है वहां पे y 0, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x 0 जी। थर्ड पार्ट x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, 1/2x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5, 1/2x प्लस वाई इज ग्रेटर इक्वल टू एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 जी। associated equations are x plus y is equal to 5, 1/2x plus y is equal to, अब भाई जन L1 x इंटरसेप्ट का 5 0 और y इंटरसेप्ट का 0 5 जी। भाई x इंटरसेप्ट का 5 0 और y इंटरसेप्ट का 0 5 जी। और भाई जन अगली बात देखिएगा कि x इंटरसेप्ट निकालना हो हमेशा y को 0 पुट करेंगे तो x निकलेगा 5, तो पेयर बन गया 5 0। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x इज इक्वल टू 0 हमेशा, और y निकलेगा 5 तो पेयर बनेगा 0 5। और भाई जन ये ट्रू है और ये क्या है, ट्रू है। अगर ये ट्रू है टूवर्ड्स जी क्या होगा जी, ओरिजिन होगा, टूवर्ड्स जी ओरिजिन होगा। नाउ L2 x इंटरसेप्ट -1 0 और y इंटरसेप्ट 0 2 जी। x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, जब y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1 निकलेगी तो -1 0 बनेगा। y इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट x 0, जब x को 0 पुट करोगे y की वैल्यू 2 निकलेगी जी।
तो भाई ये हमारे पास L2 आ गया जी भाई -1 0 एंड 0 2 ना, और ये फॉल्स है तो क्या होगा अपोजिट टू द ओरिजिन, अपोजिट टू द ओरिजिन एंड वी हैव x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जरा देखिएगा x इंटरसेप्ट हमेशा निकालना तो पुट y 0, y इंटरसेप्ट निकालना तो हमेशा x इज इक्वल टू 0। जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकलेगी, तो पेयर बनेगा x, y। इसी तरह y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0, y की वैल्यू आएगी तो पेयर बनेगा x, y। नाउ वी हैव L1 इज पासिंग थ्रू 5 0 एंड 0 5, तो ये ट्रू है तो क्या होगा टूवर्ड्स द ओरिजिन ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड। ये L2 हमारे पास है, इसका x इंटरसेप्ट -1 0 और y 0 2, और ये फॉल्स है तो भाई जिन किस तरफ होगा टू अपोजिट टू द ओरिजिन। नाउ वी आर गिवन x ग्रेटर इक्वल टू 0, तो भैया वी हैव ऑन दिस साइड। तो आपका ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये आपका शेडेड पोर्शन होगा और ये हमारा फिजिबल रीजन होगा। तो इसके कॉर्नर पॉइंट होंगे 0 2 0 5 और भैया 1 5 1 4। ये किस तरह निकलेगा, L1 L2 को साइमल्टेनियसली हल करना। तो 1 असूली तौर पे ये गलत है, असूली तौर पे ये आना चाहिए हमें x इधर मूव करें, इधर मूव करें x फासला और इधर फासला y वाला, वो निकलेगा 1 निकलेगा और वो 4 निकलेगा जी। 3x + 7y इज लेस देन इक्वल 21, x - y इज लेस देन इक्वल टू 3, x is greater equal to 0, y greater equal to 0. Associated equations are 3x + 7y is equal to 21, x - y is equal to 3। भाई ये हमारा एसोसिएटेड दो आ गई 1 और 2। नाउ भाई जरा देखिएगा 3x + 7y is less than equal to 21, x - y is less than equal to 3, x is greater equal to 0, y is greater equal to 0। नाउ ये L1 का x इंटरसेप्ट 7 0, y इंटरसेप्ट 0 3। भाई x इंटरसेप्ट 7 0 और y इंटरसेप्ट 0 3। किस तरह x इंटरसेप्ट निकालना तो y 0, जब 1 में y 0 पुट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू 7 निकलेगी, पेयर बनेगा 7 0। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0, जब x को 0 पुट कर y की वैल्यू 3 निकलेगी तो पेयर बनेगा 0 3। नाउ वी आर 7 0 एंड 0 3। नाउ L2 x इंटरसेप्ट 3 0 और y इंटरसेप्ट 0 -3। भाई 3 0 किस तरह निकलेगा, जब y को 0 पुट करेंगे वहां से x की वैल्यू 3 निकलेगी, पेयर बनेगा 3 0। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0, वहां से y निकलेगा -3, तो 0 - 3। नो ये 2 पॉइंट्स आ गए। ना ये L1 है और ये हमारा क्या जी L2। ये हमारे पास L1 है और ये हमारे पास क्या L2। अब तो देखिएगा दोनों ट्रू हैं भाई, ये दोनों क्या हैं ट्रू। भाई देखिएगा L1 भी ट्रू है, वी आर ओरिजिन साइड पे, L2 भी ट्रू है, वी आर ओरिजिन साइड। असूली तौर पे ये वाला पोर्शन बनता है। नाउ वी आर गिवन x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो भाई x ग्रेटर इक्वल टू 0 इधर, y ग्रेटर इक्वल टू 0 इधर। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये हमारा शेडेड पोर्शन होगा जी, और ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा जी। भाई जान ये जो शेडेड पोर्शन होगा ये हमारा क्या होगा जी, फिजिबल रीजन भी कहलाएंगे इसको, ये सोल्यूशन सेट भी कहलाएगा। इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे 0 0 3 0 0 3 एंड इसके होगा 21/5 और 6/5। ये किस तरह निकलेगा, आपको जो पहली और दूसरी मसवात है उनको साइमल्टेनियस हल करना है तो ये निकल आएगा। या इसका जो जेन्युइन मेथड है, आप इतना है x यूनिट इतना होगा और y यूनिट, x की निकलेगा हमेशा 21/5 और y निकलेगा 6/5। ये 6/5 मीन 1 पॉइंट समथिंग और ये 4 पॉइंट समथिंग जी। फिफ्थ पार्ट 3x + 2y is greater equal to 6, x + y is less than equal to 4, where x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0. Associated equations are 3x + 2y is equal to 6, x + y is equal to 4 जी। L1 x इंटरसेप्ट निकलेगा 2 0 और y इंटरसेप्ट निकलेगा 0 3। भाई x इंटरसेप्ट 2 0 और y इंटरसेप्ट 0 3। वो किस तरह, x इंटरसेप्ट निकालना तो पुट y 0, जब y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 2 निकलेगी तो पेयर बनेगा 2 0। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0, y की वैल्यू 3 निकलेगी तो 0 3, ये हमारा पेयर बनेगा। भाई x इंटरसेप्ट क्या 2 0 और y इंटरसेप्ट क्या 0 3 और ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, इसका मतलब अपोजिट टू द ओरिजिन। नाउ L2 का x इंटरसेप्ट क्या है 4 0 और y इंटरसेप्ट का 0 4। भाई x इंटरसेप्ट निकालना पुट y 0, जब y को 0 पुट करेगा x की वैल्यू 4 निकलेगी तो पॉइंट बनेगा 4 0। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0 और y का वैल्यू 4 निकलेगी तो बनेगा 0 4। नाउ ये ट्रू है तो क्या होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन जी। नाउ देखें x इंटरसेप्ट L1 की बात हो रही है, x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पे जहाँ पुट y 0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट x 0 जी। L2 की बात होगी, x इंटरसेप्ट निकालना तो पुट y 0,
वाई इंटरसेप्ट के लिए हमेशा एक्स 0, तो पेयर बनेगा 2 0 और 0 3, 4 0 एंड 0 4। अब जरा देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो ये L1 का 2 0 और 0 3, और ये भाई जब ज्वाइन कर लाइन बनेगी ये फॉल्स है तो क्या होगा, अपोजिट टू डिवीजन, ये पॉला था पोर्शन जी। नाउ L2 का क्या है, 4 0 एंड 0 4, और ये 2 है तो क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। नाउ वी आर गिवन x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो वी आर x ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑन दिस साइड, y ग्रेटर इक्वल टू 0 ऑन दिस साइड, तो भैया ये वाला जो पोर्शन होगा ना, दैट विल बी अवर शेडेड पोर्शन जी, दैट विल बी अवर शेडेड पोर्शन। और आप जरा देखें कॉर्नर पॉइंट्स क्या बनते हैं, 2 0 4 0 0 4 एंड 0 3, भाई क्लियर कट नजर आ रहे हैं, 2 0 4 0 0 4 एंड 0 3 जी। 6th part we have 5x plus 7y is less than equal to 35, x minus 2y is less than equal to 4, where x is greater equal to 0 and y is greater equal to 0। भाई associated equations are वो क्या बनेगी भाईजन, 5x plus 7y is equal to 35 और x minus 2y is equal to 4, ये 1 और 2 जी। भाईजन L1 ये है, इसका x इंटरसेप्ट 7 0 और y इंटरसेप्ट 0 5 जी। x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, जब y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 7 निकलेगी, तो पेयर बनेगा 7 0। x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट 0 होता है, x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट करता है 0। y इंटरसेप्ट निकालना तो पुट x 0, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 निकलेगी, तो पॉइंट बनेगा 0 5। x इंटरसेप्ट 7 0, y इंटरसेप्ट 0 5, तो ये हमारी L1 निकल आएगी। इसी तरह L2 का जो x इंटरसेप्ट होगा वो 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 1 2 जी। भाई 4 0 x इंटरसेप्ट y 0, जब y को 0 पुट करोगे x के लिए 4 निकलेगी, y इंटरसेप्ट के लिए पुट x 0 और y के लिए -2 निकलेगी, तो ये हमारा L2 निकला है। भाई ये L2 का x इंटरसेप्ट 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 -2, L1 का x इंटरसेप्ट 7 0 और y इंटरसेप्ट 0 5। आप जो देखिएगा ये 7 0 है और ये 0 5, और दोनों 2 हैं, ये L1 2 है तो क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, ये वाला सारा पोर्शन आ गया। नाउ इधर से x इंटरसेप्ट 4 0 और y इंटरसेप्ट 0 -2, तो ये भी 2 है, तो क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो भाई ये जो यहाँ से लेके ये वाला सारा पोर्शन हमारा कॉमन होगा जी। नो वी आर गिवन x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब इधर और y ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब इधर, तो भैया ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये हमारा क्या होगा जी, फिजिबल रीजन होगा जी। भाई ये वाला जो सोल्यूशन होगा ये हमारा क्या होगा जी, फिजिबल रीजन होगा जी। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा 0 0, भैया ये 4 0 0 5 और ये 98/17 एंड 15/17, ये दोनों को हल कर रहे हैं ना, इन दोनों मसवातों को हल करके x और y निकालेंगे तो भी गेट दिस। तो ये हमारा फिजिबल रीजन है। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे, 0 0 4 0 91 98/17 एंड 15/17 एंड 0 5, ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स भी आ गए, ये फिजिबल रीजन भी आ गए। भजन जब भी x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, जब भी x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट x 0। भाई x इंटरसेप्ट निकालना हो तो पुट y 0, y इंटरसेप्ट निकालना हो तो x इज इक्वल टू 0, x एक्सिस के ऊपर y कंपोनेंट 0 और y एक्सिस के ऊपर x कंपोनेंट 0।